Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. May I check my PPT once? Yes, sure, ma'am. Is it visible, ma'am? Yes, ma'am. I'm changing the slide also. Yes, it's changing. Thank you. Please let me know when to start. Yes, ma'am.
Mitali ma'am, Yes, ma'am. shall we start? I think we should start, ma'am. It's 5:03. How many participants? Near about 120. Okay. I think we should start now. Sure. Yeah. Good evening, everyone. So I welcome everyone on the 49th online training of Aryavat Sahodaya on behalf of entire group of Aryavat Sahodaya. I also welcome our one of the favorite resource person, Mitali Mukherjee ma'am. She is with here with another topic that is life skill. So I hope you everyone will hear her by 5:50. After 5:50, we will share you the attendance link. Till that time, we will listen our resource person Mitali ma'am. So over to you, Mitali ma'am. Yes, Mitali ma'am. Mitali ma'am. Am I audible? Okay. Thank you. Thank you so much.
Dear participants, sorry, Mitali ma'am is facing some network issues, so she will be connected in a minute. So please wait, please. Thank you, Anjali ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. No, there is no any sound problem, ma'am. Actually, our resource person with Ali ma'am is facing some network issue. That's why we are waiting here. Santosh sir, there is no any sound problem, sir. Actually, ma'am is facing some technical issues. Okay, okay, sir. Thank you, thank you. Good evening, all of you. Sorry for waiting. Good evening, ma'am. So I'm just sharing my PPT. Okay, I hope it's visible to all of you. Yes, it's visible. May I start, Simple Ma'am? Yes, yes. So, ma'am, Thank you so once much. again, once again, I welcome you on the behalf of Aryavarta Sahodaya. And today's topic is life skill. So, we all participants, including me, is waiting to listen you. So, over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Ma'am, as Yes, you know, all of you, dear, that today's topic is life skill training. life skills. Okay. I'm just trying to move out of this view so that I know that whether my connection is available or not. Okay. Now, this is something very important because this is a very, very important topic because as you all know that no matter how good we are in subject knowledge, in our content, there are certain other skills
which are included, which are very, very important to lead a happy life. Like, for example, just now, there was some network connection, okay? And you all were waiting very patiently for me to rejoin. Now, suppose I'm a person who is having a very big attitude, or a person who has no patience. In that case, what will I do? I will try once or twice and then leave it. कि चलो ये तो हो ही नहीं रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करना, मैं इरिटेट हो जाती, मैं छोड़ देती. तो क्या होता आज का सेशन? जो हो सकता था वो भी नहीं होता. तो आप इन दैट केस मेरे नॉलेज को नहीं जज करते, ये नहीं जज करते कि मुझे कितना कंटेंट आता. आप ये कहते कि मिताली मैम बड़ी इम्पेशेंट है, वो तुरंत इम्पेशेंट हो जाती है. और आप शायद अगली बार मेरा सेशन करने के पहले 4 बार सोचते कि पता नहीं मैम को तो पेशेंस ही नहीं है, सेशन पूरा कर पाएंगे कि नहीं. दिस इज वन ऑफ द लाइफ स्किल्स. सिमिलरली, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, और आपको यही नहीं पता कि आपको कैसे कपड़े पहनना चाहिए, तो आप मिसफिट हो जाएंगे, आउट ऑफ प्लेस अपने आप को फील करेंगे. ये भी एक लाइफ स्किल है. अगर आप 10 लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और बार बार आप अपने मुंह से खाना नीचे गिरा रहे हैं, तो जो भी आपके अगल बगल बैठा है वो इरिटेट हो जाएगा. वो कहेगा यार इस आदमी के साथ खाना खाने में बैठने बड़ा खराब लग रहा है, ऑकवर्ड फील हो रहा है. वो भी एक लाइफ स्किल है. तो आप ये समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्किल. लाइफ स्किल वो सारे स्किल्स हैं, वो सारी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट नॉलेज. सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा जितनी भी जीवन में चीजें हैं, कैटेगराइज एज लाइफ स्किल. झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, कपड़े साफ करना, गाड़ी चलाना, बाय 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर चलाना, 4 व्हीलर चलाना, मे बी 6 व्हीलर, 8 व्हीलर चलाना भी एक लाइफ स्किल है. स्विमिंग करना, डांस करना, गाना गाना, अच्छे से बात करना, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना, कपड़े पहनना, 10 लोगों के सामने उठना बैठना, ये सारी लाइफ स्किल्स. नाउ वी आर द टीचर्स ऑफ सीबीएसई स्कूल्स. तो इतनी सारी लाइफ स्किल्स तो है ही, लेकिन सीबीएसई ने क्या किया है, कुछ बेसिक लाइफ स्किल्स को अंडरलाइन किया. ये 10 बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो हमारे बच्चों को जानना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज उनकी लाइफ बहुत कष्टदायक हो जाएगी. सो कुछ लाइफ स्किल्स जो सीबीएसई हमें बताती है वो तो हमें बताना ही है बच्चों को. हमें कोशिश करनी है व्हेन वी आर टीचिंग मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी और साइंस और सोशल साइंस, जो भी आप पढ़ा रहे हैं. देखिए, लाइफ स्किल का कोई टीचर नहीं होता, सबसे पहले तो इस बात को समझिए. तो आप में से कोई भी टीचर अगर यहाँ बैठे हैं, उनके मन में मान लीजिए कोई संदेह है कि भैया मैं तो लाइफ स्किल नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं तो सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, तो ये संदेह गलत है. नो टीचर इज टू बी डेजिग्नेटेड एज अ लाइफ स्किल टीचर, बट एवरी टीचर इज अ लाइफ स्किल टीचर. Yani, whether you're teaching English, whether you're teaching Hindi, whether you're teaching maths, you're teaching PHE, you're teaching drama, you're teaching music, dance, whatsoever, you have to incorporate life skills in your subject. तो यानी लाइफ स्किल एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, लाइफ स्किल आपके सब्जेक्ट में ही डाला हुआ एक पार्ट है. थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग आप कैसे कर सकते हैं इन 1 आवर्स टाइम. वॉट एवर लिटिल वी कैन डिस्कस विल डिस्कस. फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी कि अगर आप लाइफ स्किल्स पे और सर्वे करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाकर पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इफ इट्स नॉट व्हाट यू डू फॉर योर चिल्ड्रन, but what you have taught them to do for themselves will make them successful human beings. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. अभी जो मेरे साथ हुई, जस्ट अभी 10 मिनट पहले हुआ ये मेरे साथ. आप लोग जितने भी लोग मेरे सेशंस अटेंड करते हैं, आप सबको पता है कि मेरा एक बेटा है और मेरे बेटे को भी नई नई नौकरी मिली है. ठीक है, एवरीबडी नोज दिस, क्योंकि मिताली मैम जो बाहर से है वही अंदर से है. मैं कोई भी बात अपने दिल में छुपा कर नहीं रख सकती, आप लोग सबको पता है. तो मैं जब खुश होती हूँ तो मैं वो भी बता देती हूँ, मैं जब दुखी होती हूँ तो मैं वो भी बता देती हूँ. इट इज माई नॉर्मल सेल्फ. तो मैं बहुत खुश थी जब मेरी बेटी की नौकरी हुई, मैंने पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया कि उसकी जॉब हो. नाउ व्हाट हैपेंड,
आज पहली बार मेरे बेटे ने एक पार्सल भेजा। तो जब मैं स्कूल से भी तुरंत घर आई तो मैंने एक पार्सल देखा, तो मैंने कहा मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, ये क्या आ गया। तो मेरी जो हेल्प है मेरे घर पे, जो मेरी हेल्प करती हैं, शी स्टेज देयर फॉर द एंटायर डे। उसने कहा कि मेरे बेटे का नाम लेकर के उसने भेजा है। फोन आया था मेरे फोन पे, कहा मम्मी को दे दीजिए। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गई। फिर मैंने उसको खोल कर देखा, तो पता है आपको उसमें क्या था? उसमें एक ब्लड प्रेशर का मशीन था। बिकॉज आई हैव बीन न्यूली डिटेक्टेड विद ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, एंड it is so nice of him to think that my mother should have a blood pressure machine at home so that she can check. पर्पस उसका यही होगा, आई एम श्योर। लेकिन अब आप लाइफ स्किल्स के साथ इसको जोड़ कर देखिए। मेरे बेटा का नौकरी हो गया, वो बहुत कुछ खरीद कर भेज सकता था। वो मुझे एक लिपस्टिक बेच सकता था, कोई स्मॉल पीस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच सकता था, साड़ी बेच सकता था, कुछ भी, विच इज वेरी कॉमन। बट व्हाई डिड ही सेंड दिस? एंड सबसे बड़ी बात कि ही सेंट इट, कुछ भी वो भेजे। वो अपने पैसे, जितने भी पैसे उसको मिलते हैं, क्योंकि वो इंटर्न है, तो बहुत सिंपल है, बहुत कम पैसे हैं उसके पास। वो नहीं भी भेजता तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उसने भेजा। यू इमेजिन हाउ मच हैप्पी आई एम। क्यों हैप्पी हूं? नॉट बिकॉज ऑफ द सामान, बिकॉज ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। तो ये जो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है ना हम लोगों के अंदर, ये भी एक लाइफ स्किल है, सबसे बड़ा लाइफ स्किल है। हाउ यू थिंक। आपने सोचा कि आपके पेरेंट्स को इस चीज की जरूरत है, दैट थॉट प्रोसेस इज एक्चुअली द डेवलपमेंट ऑफ अ लाइफ स्किल। Thank you to his teachers, thank you to parents, thank you to the society which has forced him to think like this, which has helped him think like this. So remember, dear teachers, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा जब 15 साल के बाद स्कूल के गेट से बाहर निकलेगा, वो अपने लिए क्या कर सकता है। क्योंकि चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप टीचर हो, आप कोई भी हो, आप जिंदगी भर किसी बच्चे का हाथ पकड़कर नहीं चल सकते हैं। That child has to help himself or herself. So how can a person help himself or herself? एक इंसान अपनी मदद कैसे कर सकता है? उसके पास सिर्फ एक ही अस्त्र है जिसकी मदद से वो अपनी मदद कर सकता है। और आपको पता है वो अस्त्र क्या है? That is a brain, that is a thinking process, cognition. और थॉट से ही हमारा हार्ट, हमारा हैंड, हमारा इफेक्टिव डोमेन, हमारा साइकोमोटर डोमेन सब रिलेटेड। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहला और सबसे ब्यूटीफुल कोटेशन अबाउट लाइफ स्किल्स यही है कि आप अपने बच्चों के साथ हैं, आप उसको सारी दुनिया की दौलत दे रहे हैं, आप उसको बहुत नॉलेज दे रहे हैं, आपके बच्चे को चाय की जरूरत है चाय दे रहे हैं, कॉफी की जरूरत है कॉफी दे रहे हैं, चिकन की जरूरत है चिकन ला के दे रहे हैं, पनीर की जरूरत है पनीर ला कर दे रहे हैं, नए कपड़े ला कर दे रहे हैं, नए जूते ला कर दे रहे हैं, नए नए गैजेट्स ला के दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को ऐसा तैयार कर रहे हैं कि कल को ये चीजें वो खुद अपने लिए ला सके? Not with your support, without your support. That is life skill. How to become a successful human being. Okay. Thank you so much. Now, this is
Okay, ma'am. Okay. So sorry for the repeated interruptions. Okay, ma'am. So we go to slide number 3 now, which says the primary aim of education is not to enable students to do well in school, but to help them do well in their lives. That is outside the school. So beautifully it is said. You have to understand this. Just now what I said, that what is the aim of education? The aim of education यही है कि you must not do everything for your children. जैसे हम लोग स्कूल में भी आप देखिए ध्यान से, the teachers, हम बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स भी लिखवा देते हैं, हम बच्चों को स्पून फीड कर देते हैं सारी आंसर्स, हम बच्चों को डिक्टेट कर देते हैं आंसर, हम बोर्ड पे लिख देते हैं आंसर, बच्चे उसको कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद जब एग्जाम में हम वही क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चे वही जवाब लिखते हैं तो हम उनको 90 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 भी आजकल आ जाता है। लेकिन आपको ये सोचना है कि ये जो 100 में 100 मेरे बच्चे को आ रहा है, क्या ये 100 में 100 उसको स्कूल पास करने के बाद भी आएगा लाइफ में? यस मैम, दिस स्लाइड। सो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चों को सब चीज रट्टा मारकर स्कूल में नहीं सिखाएं। आप अपने बच्चों को ऐसे प्रिपेयर करिए कि वो फ्यूचर में स्कूल के बाहर जाकर भी अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी सके। तो अभी हम लोग लेट्स प्लीज चेंज द स्लाइड मैम। सबसे पहले हम लोग स्लाइड नंबर 6 पे जाते हैं, ठीक है? प्लीज गो टू स्लाइड नंबर 6। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, स्लाइड पे भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप काइंडली कोशिश कीजिए उन क्वेश्चंस का जवाब देने का। पहला, लाइक अ मैन, बी लाइक अ लेडी। हम कहते हैं ना बहुत समय लड़कों को, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं है। अरे लड़कियां ऐसे हंसती हैं, लड़कियां ऐसे बैठती हैं, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। ये जो हम कह रहे हैं ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। Which of the following skills is essential to contain damaging effects of living up to gender stereotype? अभी 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? डीलिंग विद इमोशन, कोपिंग विद स्ट्रेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइप से फाइट करना चाहते हैं, इनमें से कौन सी स्किल का होना जरूरी है आपके पास? कैन आई हैव सम आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्लीज? क्या आप कुछ आंसर्स दे सकते हैं चैट बॉक्स पे? A, B, C, D, बस आप इतना लिख दीजिए, A, B, C, D, I think that would be enough. A, B, C or D? Very good. Very good. Effective communication is also very good idea. कि आप कैसे बात कर रहे हैं? Some of you are writing critical thinking. That is also very correct. How you think is important about gender sensitivity. Very good. Let's go to the next question. When a student says, I would rather think upon a picture on my own than trace or copy one, मतलब वो कॉपी नहीं करेगा, खुद से सोचेगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है? उसका क्या हाई क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग? कौन सी चीज उसकी अच्छी है? ए, बी, सी, डी। वो बच्चा ये कह रहा है कि मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं खुद से बनाऊंगा। तो उसका कौन सा स्किल यहाँ अच्छा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग? वेरी गुड, क्रिएटिव थिंकिंग तो उसकी अच्छी है ही, तभी वो खुद से बना रहा है। वेरी गुड। इसी तरीके से मैडम कुछ क्वेश्चंस टीचर्स हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं कि बच्चे का लाइफ स्किल का लेवल क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स थे कुछ। मैम कैन वी गो टू स्लाइड नंबर 12 प्लीज? स्लाइड नंबर 12। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड आंसरिंग। नाउ what are life skills? Life skills are the abilities for adaptive and positive behavior. Number 1 is adaptive. जैसे मान लो आज मेरा लैपटॉप का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, अब मैं मोबाइल से सेशन ले रही हूँ, मैंने अपना पीपीटी सिंपल मैम के साथ शेयर किया। अगर मैं रिजिड हो जाऊं कि नहीं मैं करूंगी तो लैपटॉप से, नहीं तो सेशन ही नहीं करूंगी, तो लाइफ में बहुत जगह हमें ब्रेक्स का सामना करना पड़ेगा, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सो व्हाट आर लाइफ स्किल्स? आर द एबिलिटीज फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर that enables individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. अभी आप 5 मिनट लेट उठे, सुबह सुबह होता है ना हमारे साथ, बहुत अक्सर हमारी बस आने वाली होती है, हम 5-10 मिनट लेट उठे,
अब हम 5-10 मिनट लेट उठे, अगर हम रोना शुरू कर दें कि अब तो 10 मिनट लेट हो गया, आज तो मेरी बस छूटेगी ही छूटेगी, हम ऐसा नहीं करते ना। हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट 10 मिनट लेट उठे हैं, कौन सा 5 काम हम नहीं भी करेंगे तो भी मेरा काम चलेगा, और कौन से काम सबसे पहले में करना चाहिए ताकि मैं बस पर टाइम पे पहुंचूं। तो रिमेंबर दिस, एवरी डे लाइफ आपको चैलेंज करता है, एवरी डे लाइफ आपसे हजारों सवाल करता है और आपको अडेप्टिव होने के लिए कहता है। और अगर आप अडेप्टिव हो सकते हैं, अगर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं समय के अकॉर्डिंग, तभी आप लाइफ स्किल से भरपूर इंसान हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लाइफ स्किल क्या है? लाइफ स्किल आर द एबिलिटीज दैट फैसिलिटेट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। अब आपकी फॉर एग्जाम्पल अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई या वाइफ से लड़ाई हो गई, बहुत अच्छी बात, सबकी होती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या वो महीने, 4 महीने, 6 महीने, बहुत लोगों को आप देखिएगा 10 दिन से बात नहीं हो रही है, 20 दिन से बात नहीं हो रही है, खाना नहीं खा रहे, रोज रोना धोना हो रहा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आज लड़ाई की, 10 मिनट के बाद आज चलो सॉरी, मैं भी सॉरी, तुम भी सॉरी, फिर दोस्ती हो गई। दिस इज एडेप्टेशन, दिस इज लाइफ स्किल। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप किसी झगड़े को 10 दिन 20 दिन तक खींचिएगा तो डेफिनेटली आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका इमोशनल वेलबींग पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका फिजिकल हेल्थ भी डिटेरियोरेट कर सकता है। तो लाइफ स्किल हमें यही सिखाता है कि हम अपने फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। अभी लाइफ स्किल के दो हिस्से होते हैं। पहला, लाइवलीहुड स्किल्स। व्हाट आर लाइवलीहुड स्किल्स? लाइवलीहुड स्किल्स वो स्किल्स हैं जिनको यूज करके आप किसी न प्रकार के रोजगार की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी मान लीजिए मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बहुत अडेप्टिव हूँ, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करती, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई स्किल ही नहीं है, कोई ऐसा गुण ही नहीं है जिसके थ्रू मैं 2 पैसे कमा सकूं। तो मैं अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगी? जिंदगी भर किसी और से भीख मांगूंगी, किसी और पे आश्रित होकर चलाऊंगी? तो इसका मतलब मेरे अंदर प्रॉपर लाइफ स्किल्स नहीं है। तो आप याद रखना होगा आपको, मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, सिंपल मैम। तो आपको ये याद रखना होगा कि लाइवलीहुड स्किल्स हर इंसान के अंदर होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने इकोनॉमिक गोल्स को फुलफिल कर सके। तो व्हाट आर लाइफ स्किल्स? मैंने आपको शुरू में ही बोला था ना, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि 10 लाइफ स्किल्स हैं जो सीबीएसई इनरोल करके दिया है, लिस्ट करके सीबीएसई ने दिया है कि एज अ टीचर हमें अपने बच्चों के अंदर ये 10 लाइफ स्किल्स, हमारे बच्चों को इसमें पारंगत होना चाहिए। Now, what are those life skills? It is visible on your screen. Please check. Self-awareness, effective communication, problem solving, interpersonal relationship, creative thinking, critical thinking, decision making, empathy, coping with stress and managing emotions. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में बताती हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, लाइफ स्किल इज अ सम टोटल ऑफ सोशल स्किल, इमोशनल स्किल एंड थिंकिंग स्किल्स। यानी सोशल, इमोशनल, थिंकिंग, ये तीनों स्किल जब एक साथ जुड़ते हैं तब जाकर लाइफ स्किल्स होता है। लाइफ स्किल में सोशल स्किल्स भी हैं। मैम कैन बी ओके दिस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस की बात करूं, ये कैसा स्किल है ये बताइए? ये सोशल है, इमोशनल है कि थिंकिंग है? कौन सा स्किल है? सेल्फ अवेयरनेस। आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्लीज। सेल्फ अवेयरनेस कौन सा स्किल है? सोशल है, इमोशनल है कि थिंकिंग है? ऑफ कोर्स इट्स अ थिंकिंग स्किल, वेरी गुड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा स्किल है? सोशल, इमोशनल या थिंकिंग? ऑफ कोर्स इट्स अ सोशल स्किल। फिर आप देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कैसा स्किल है? तो ये थिंकिंग स्किल्स है। क्रिएटिव थिंकिंग कैसा स्किल है? थिंकिंग स्किल है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये कैसा स्किल है? सोशल स्किल, एक दूसरे के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैम कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ स्किल में कुछ स्किल सोशल होते हैं, कुछ स्किल इमोशनल होते हैं और कुछ स्किल थिंकिंग स्किल्स होते हैं। ये तीनों मिलाकर लाइफ स्किल्स बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आप देखिए कि यहाँ पे क्लियर कट बाइफर्केशन है। थिंकिंग स्किल्स में कौन कौन से स्किल आते हैं? सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। सोशल स्किल्स में कौन कौन से आते हैं? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्पैथी। स्किल में क्या क्या आता है? मैनेजिंग विद इमोशंस एंड कोपिंग विद स्ट्रेस। यानी 3 टाइप के लाइफ स्किल्स होते हैं, थिंकिंग, सोशल, इमोशनल, और ये सारे धीरे 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 डेवलप होना जरूरी है। अब मैं आपको सबके बारे में 2-2 लाइन थोड़ा बता देती हूँ। सेल्फ अवेयरनेस, ये कैसा स्किल है? अपने आप को जानना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मिताली मुखर्जी को अचानक मन करे कि मैं
बॉलीवुड की हीरोइन बन जाऊं, मेरा मन है कि मैं बॉलीवुड की हीरोइन बन जाऊं, ठीक है। अब बॉलीवुड की हीरोइन बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे दुबला होना होगा, मुझे गोरा होना होगा, मुझे लंबा होना होगा, मुझे डांस सीखना होगा, मुझे थोड़ा बहुत जिम्नास्टिक सीखना होगा, मुझे एरोबिक सीखना होगा, मुझे अपने बाल ठीक करने होंगे, मुझे मेरा नाक बिल्कुल ब्लंट है, उसको मुझे शार्प करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी फेशियल सर्जरी करानी पड़ेगी, तब जाकर हो सकता है मैं बॉलीवुड की हीरोइन बन सकूं, हो सकता है। लेकिन अगर मिताली मुखर्जी को टीचर बनना है, प्रिंसिपल बनना है, रिसोर्स पर्सन बनना है, तब मुझे क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी ताकि मैं और स्किल्ड नॉलेजेबल रिसोर्स पर्सन बनूं। आसान कौन सा है? बॉलीवुड की हीरोइन बनना आसान है या रिसोर्स पर्सन बनना आसान है? मेरे लिए कौन सा आसान है? ऑब्वियसली आप कहेंगे मैम रिसोर्स पर्सन बनना आसान है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आपके अंदर ये सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाट आर योर प्लस, व्हाट आर योर माइनस, व्हाट आर योर गुड, व्हाट आर योर बैड, व्हाट आर योर नेगेटिव, व्हाट आर योर पॉजिटिव्स, ताकि आप किसी डायलेमा की दुनिया में नहीं रहे, आप एक इल्यूजन वर्ल्ड में नहीं रहे। अरे मैं तो हीरोइन बन सकती हूँ, ये सोचकर बहुत बच्चों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। फिर बहुत लेट होता है जब वो रियलाइज करते हैं कि अरे मैं तो ये बन ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए फील्ड है ही नहीं। कभी पीयर प्रेशर में आके, कभी पेरेंटल प्रेशर में आकर, कभी खुद के प्रेशर में आकर हम ऐसे डिसीजंस अपने लाइफ के ले लेते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं है। आप सोचिए, अगर लता मंगेशकर क्रिकेट खेलती, क्या वो इतनी अच्छी होती? अगर सचिन तेंदुलकर गाना गाता, क्या वो इतना सक्सेसफुल होता? सो अपने आप को पहचानना, अपने टैलेंट को पहचानना, अपने स्किल को पहचानना, उस दिशा में आगे बढ़ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? डीलिंग कंस्ट्रक्टिवली विद प्रॉब्लम्स। जैसे अगर आपने कभी मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन अटेंड किया है, तो मैं उसमें ये कहती हूँ कि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आप ये समझते हैं कि भैया मुझे तो स्ट्रेस होगी ही नहीं, मैं तो इतना खुशमिजाज इंसान हूं कि मुझे लाइफ में कभी स्ट्रेस होगा ही नहीं, मैं कभी टेंशन में आऊंगा ही नहीं, मुझे कभी बीपी हाई होगी ही नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, तो आप बिल्कुल सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। अगर आप हकीकत की दुनिया में आए, तो सुबह सुबह एक आलू की भुजिया बनाने में भी स्ट्रेस हो जाता है, होता है या नहीं? आपको लगता है यार भुजिया बनानी है, बस का टाइम हो गया, जल्दी बनाओ, जल्दी ये करो। कभी कभी आप गैस को हाई फ्लेम पे कर देते हैं, भुजिया जल जाती है, अंदर से सींचता नहीं है। देयर आर सो मेनी इश्यूज इन सिंपली मेकिंग वन आलू का भुजिया। लेकिन इसका मतलब क्या है? वो प्रॉब्लम तो होगी। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो प्रॉब्लम होगी, that problem will happen in your life, but you have to understand how to deal with it constructively. आपको समझना होगा कि अरे मुझे अगर भुजिया बनानी है तो मुझे 10 मिनट पहले नींद से उठना होगा। आप भुजिया बनाते बनाते बहुत और कुछ काम भी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। अगर बाय चांस किसी दिन आपका भुजिया थोड़ा कच्चा ही रह गया, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करके खाना पड़ेगा। आपको ये सोचना होगा कि ना ना ना, अगर भुजिया बन ही गई है, मान लो मेरा भुजिया गड़बड़ भी हो गया है, तो भी कोई बात नहीं, मैं वर्किंग वुमन, कभी कभी हो सकता है ऐसा, मुझे खा लेना चाहिए। अब आप उस भुजिया को लेकर लड़ाई झगड़ा करेंगे, खाना नहीं खाएंगे 3 दिन, तो किसका प्रॉब्लम होगा? आपको प्रॉब्लम होगी और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट व्हाट वी कैन चेंज इज हाउ वी परसीव द प्रॉब्लम, how we see the problem and how we deal with the problem. I hope I'm clear कि प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपको ये सोचना है कि आप उस प्रॉब्लम के साथ कितने प्यार से डील कर सकते हैं, कितने मोहब्बत से डील कर सकते हैं, कितना हंसते खेलते डील कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम भी शर्मा कर भाग जाएगी आपके पास से। सो डीलिंग इज इंपॉर्टेंट बट प्रॉब्लम्स रहेंगी। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट इज थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल में हमारा पहला स्किल क्या कहता है? डिसीजन मेकिंग। यानी लाइफ में बहुत सारी हमारी खुशियां, चीजें इफेक्ट होती हैं हमारे डिसीजंस की वजह से। अगर आप डिसीजन एक कोई गलत ले लिया, कभी कभी ऐसा भी होता है माय डियर फ्रेंड्स, दैट होल लाइफ वी हैव टू स्ट्रगल विद दैट डिसीजन। सो हमारे लाइफ का तो जो हुआ सो हुआ, but as teachers, as educators, it's very important for us to teach the children how to take the right decisions. और उसके लिए मैं ये समझती हूँ एज अ टीचर
You should create, mock platforms for your children where they can take decisions. आपको ऐसे situations आपके बच्चे के लाइफ क्रिएट करने चाहिए जहां वो डिसीजन ले सके. हाँ, वो झूठा ही हो सकता है, वो स्टेज्ड हो सकता है, वो थिएट्रिकल हो सकता है, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आना चाहिए, ताकि वो अगर वो गलत डिसीजन भी ले तो कोई नुकसान नहीं है उसका. अब अगर जिंदगी भर आप उसको एक इंक्यूबेटर में बंद करके रखेंगे तो डेफिनेटली जब वो बड़ा होगा, जब वो लाइफ में डिसीजन लेने जाएगा या जाएगी, तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. लेकिन अगर हम बच्चे को छोटे छोटे डिसीजंस शुरू से ही लेने दें, तो मे बी देयर आर चांसेस को छोटे छोटे डिसीजंस लेते 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 एक दिन बड़े डिसीजंस भी सही तरीके से लेने के लायक हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग. बहुत लोग क्रिटिकल थिंकिंग को क्रिटिसाइजिंग समझते हैं. नहीं मैम, पिछला वाला. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है, पिछला स्लाइड, कि क्रिटिकल थिंकिंग का पहले मतलब समझिए. क्रिटिकल थिंकिंग डज नॉट मीन क्रिटिसाइजिंग. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को हर एंगल से देखते हैं, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, कैसे हर एंगल से देख रहे हैं. दैट इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग. कभी आपने देखा है, अगर आप किसी पार्लर में जा रहे हैं, बाल कटवाने जाते हैं, ठीक, तो वो जो बाल काटता है आप उसको कभी ऑब्जर्व करके देखिए. वो सिर्फ पीछे खड़े होकर आपके बाल नहीं काटता है. कभी वो साइड आ जाएगा, कभी वो बाएं आ जाएगा, कभी दाएं आ जाएगा, कभी आगे से चेक करके देखेगा, कभी पीछे से चेक करके देखेगा. वो हर एंगल से देखना चाहता है कि उसने जो काम किया है वो सही है या नहीं है. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज अ काइंड ऑफ एनालाइजेशन स्किल. आप हर तरह से चेक करते हैं कि आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट थिंकिंग स्किल्स. ये फिगर मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट फिगर है. कितने सुंदर तरीके से देखिए यहाँ पोर्ट्रे किया गया कि दिमाग के अंदर से चीजें निकल रही हैं. दैट इज क्रिएटिव. और अगर आप मुझसे पूछें, ये मेरा पर्सनल थॉट है, मैं किसी पर इस थॉट को थोप नहीं रही हूँ, बट ये मेरी पर्सनल थॉट है कि क्रिएटिव थिंकिंग इज टू अ लार्ज एक्सटेंट, but as an educator I do believe that it can be inculcated also. But of course, अगर किसी के पास वो गिफ्ट है, गॉड की तरफ से वो गिफ्ट लेकर आए, तो उसका लेवल हाई होगा. लेकिन अगर आप किसी इंसान को चाहे तो एक क्रिएटिव थिंकर बना सकते हैं. और इन सारी चीजों के लिए एज यूजुअल मिताली मैम हमेशा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सपोर्ट करेंगी. ब्लूम कहते हैं कि हमारे दिमाग के 6 पायदान है, अगर आपको याद है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस, क्रिएशन जिसको कहते हैं. तो अगर टीचर्स सही क्वेश्चंस पूछे क्लास में, अगर टीचर बच्चे को सही दिशा में आगे ले जाए क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के थ्रू, तो बच्चा क्रिएशन करना भी सीख जाएगा. एंड क्रिएशन मतलब ही क्रिएटिव थिंकिंग है. आप कैसे चीजों को नए तरीके से सोच सकते हैं, कर सकते हैं, किसी नए चीज का इजाद कर सकते हैं. दैट इज नॉट एज क्रिएटिव थिंकिंग. सो क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स नया तरीका, नोवेल वे ऑफ डूइंग समथिंग और सीइंग समथिंग, अ न्यू तरीका. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलाबोरेशन. फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक राइटर हैं, तो बहुत समय आपने सुना होगा राइटर्स को कहते हुए, अरे भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मुझे माहौल चाहिए सोचने का. तो ये क्या है? आप कितनी जल्दी कितना अच्छा सोच सकते हैं. अब आपको माहौल चाहिए, आप 10 साल में एक नॉवल लिखिएगा तो डेफिनेटली कोई आपको एक अच्छा सीजन राइटर नहीं कहेगा. अगर आप एक साल में 10 नॉवल लिखिएगा तभी लोग कहेंगे ना ये सीजन राइटर है, बहुत अच्छा लिखता है, और हर महीने इसके एक एक नॉवल निकल रही है. सो सिमिलरली कितना जल्दी आप सोच सकते हैं, कितनी फ्लेक्सिबल थॉट प्रोसेसेस हैं आपकी अपनी आइडियाज होनी चाहिए, कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, और आप उसको कितना अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हैं अपने आइडियाज को. दिस इज व्हाट डिफाइंस क्रिएटिव थिंकिंग. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, नाउ लेट्स कम टू द सोशल स्किल्स. ओके, सोशल स्किल्स मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इसका मतलब आपका दूसरे लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपके कलीग्स के साथ, आपके स्टाफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके पियर्स के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है. कुछ बच्चे अक्सर देखेंगे कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तो उनको ये सब समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है,
Next, which comes in social skills, is communication. Effective communication. Effective communication पर भी मैंने सेशंस किए हैं, आपने शायद अटेंड भी किया होगा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक लाइन में अगर मुझे समझाना हो तो मैं ये कहूंगी कि आप अपनी आइडियाज को, अपने थॉट्स को कितने आसानी से एक दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं. Now, when I say communication, please never confuse कि मैम कम्युनिकेशन क्या नहीं मतलब वर्बल कम्युनिकेशन. इट कैन बी वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल का मतलब आप अपनी आंखों से बात करते हैं, आप अपनी उंगलियों से बात करते हैं, आप अपनी बॉडी से बात करते हैं, आप अपने जुबान से ही सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं. यू आर यूजिंग योर अदर बॉडी पार्ट्स आल्सो फॉर कम्युनिकेटिंग समथिंग. नेक्स्ट, एम्पैथी. Empathy is perhaps one of the best life skills a person can have. Empathy का मतलब ये होता है seeing into the eyes of another, listening with the ears of another, feeling with the heart of another. इस वक्त मैं क्या सोच रही हूं, आप इस वक्त सोच रहे हैं कि 6 बज रहे हैं, सेशन कंप्लीट होना चाहिए. आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अरे मैडम का 6 बजे वाइंड अप होगा कि नहीं पता नहीं, मैम ने लेट से शुरू किया, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं कितना लंबा सेशन खींचेगा. मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ कि हे भगवान, मैं इतना जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाकर अपना सेशन चला रही हूँ. सिंपल, मैं मेरा पीपीटी चला रही है, मैं मोबाइल पे हूँ, यहाँ लैपटॉप पे मैं स्लाइड्स चेक कर रही हूँ. 6 बजे तक मेरा सेशन अच्छे से चलवा देना. यानी मैं अलग सोच रही हूँ, आप अलग सोच रहे हैं. क्या आप मेरी तरह सोच सकते हैं? क्या मैं आपकी तरह सोच सकती हूँ? अगर मैं ये आज तो मैंने लेट शुरू किया था, मैं 6:30 बजे 7 बजे खत्म करूंगी. हो सकता है आपको 6:30 बजे कहीं और जाना हो, आपका कहीं 7 बजे का अपॉइंटमेंट हो, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं नहीं मुझे 1 घंटे अपने पूरे करने हैं. आई एम नॉट एम्पैथेटिक. मैं एम्पैथी के साथ नहीं सोच रही हूँ. एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की आंखों से देखो, दूसरों के कान से सुनो, दूसरों के दिल से सोचो. अगर तुम दूसरों तक इतने डीपली पहुंच सकते हो, इसका मतलब. फाइनली आते हैं इमोशनल स्किल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और आजकल तो मुझे दिन पर दिन दिखता है कि इमोशनल स्किल्स और कोपिंग विद स्ट्रेस से बच्चे बहुत बहुत पीछे हैं. जिस तरीके से हमारे समाज में सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नेगेटिव थॉट्स की तरफ आगे जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है इमोशनली उनको स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी. उनको ये समझाना बहुत जरूरी कि इमोशंस हैं क्या, कितने टाइप के इमोशंस होते हैं, और उन इमोशंस आप कैसे डील करो. और स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि अगर जीवन में कुछ उल्टा सीधा हो भी गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई जो हमें नहीं पसंद है, कुछ ऊपर नीचे भी हो गया, तो भी हम कैसे खुश रह सकते हैं. How to be happy when everything around you wants to make you unhappy. Still you are happy. Happiness is a state of mind. ये है इमोशनल स्किल. जैसे आप देखते होंगे बहुत एक कॉमन ऐड है व्हाट्सएप पे, एक विनिंग स्टैंड है, एक बच्चा फर्स्ट पे खड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे, फिर भी उसका मुंह बना हुआ है, और एक बच्चा थर्ड पोजीशन पे खड़ा है, फिर भी सो हैप्पी. सो रिमेंबर, whether you have won the race or not is not important. Whether you are happy from within, अगर आप दिल से खुश हैं तो ही माना जाएगा कि आप खुश हैं. मेरे पास सारी दुनिया की दौलत हो, मेरे पास 5 लाख रुपए मेरे पर्स में हमेशा खर्च करने के लिए हो, मेरे पास ऊपर से नीचे तक हीरे के जेवर हो, तभी मैं खुश होंगी, ये हैप्पीनेस नहीं है. मेरे पास कोई भी जेवर नहीं हो, मेरा पर्स खाली हो, तब भी मैं खुश रहूंगी. दैट इज नोन एज हैप्पीनेस. सो ऑल दीज स्किल्स आर इंटररिलेटेड and reinforced each other. Together, they are responsible for our competence, build our self-esteem. Next slide, ma'am. Yes, ma'am. And self-efficacy and nurture holistic development. यानी ये सारे skills interrelated हैं. Please, एक स्किल को दूसरे स्किल के साथ जोड़कर ही हम लोग पढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं. ये सारे स्किल्स इंटररिलेटेड हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. लाइफ स्किल्स आर द कीज टू सक्सेस. ये आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नहीं है, लाइफ स्किल्स में. नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. लाइफ स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइफ स्किल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रमोट करते हैं पॉजिटिव बिहेवियर एंड एटीट्यूड, communication abilities, healthy decision making, prevents negative and high risk behavior, promotes greater sociability. यानी सोशली आपको अच्छा बनाती है. बहुत लोग के बारे में सुनते होंगे ना, अरे यार उसका तो हमेशा झगड़ा ही होता है, अरे यार उसका तो कभी झगड़ा ही नहीं होता किसी के साथ, ये दो इंसान है.
आप उनके नॉलेज को नहीं चेक कर रहे हैं, आप उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स नहीं चेक कर रहे हैं, आप उनको कैसे जज कर रहे हैं? उनके सोशल स्किल्स पे। यानी सोशल स्किल्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर उनके एंगर कंट्रोल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, उनके सेल्फ एस्टीम कितना है। मैंने जैसे आपको बोला कि अगर मैं हीरे का सेट ऊपर से नीचे तक पहनूं तभी मेरा हेल्थ सेल्फ एस्टीम हाई होगा, अगर मैं नकली जेवर पहन लूं तो मेरा सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा। ये सेल्फ एस्टीम सही नहीं है। मैं कोई जेवर नहीं पहनूं तो भी मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रहेगा। एंड इट इंप्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप खुश हैं, आप सोशली एक एस्टैब्लिश्ड इंसान है, आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, अगर आप हैप्पी हो, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल है, डेफिनेटली 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 आपके रिजल्ट्स एकेडमिक्स सब अच्छे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ डू लाइफ स्किल्स हेल्प अस? ये तो मैंने आपको बताया ही कि आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपके सोशल स्किल्स और आपके इमोशनल स्किल्स, इन तीनों पे काम करता है लाइफ स्किल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्लीज चेंज द स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 29। नेक्स्ट। हाँ राइट, थैंक यू। दीज आर द लाइफ स्किल मैनुअल। जैसे मैंने आपको बताया 1 घंटा का समय बहुत कम होता है। जैसे ये मैनुअल्स में है कि आप पूछेंगे तो मैनुअल्स में एक्चुअली क्या है ना कि फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहे हो, आप फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं, आप जर्मिनेशन ऑफ अ सीड पढ़ा रहे हैं, आप फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, आप एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, उसको पढ़ाने के दौरान कोई ना कोई लाइफ स्किल के साथ अटैच करके पढ़ाना है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, लेसन प्लान्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर्स हैं। आप काइंडली इसको गो थ्रू कर सकते हैं और अपने लाइफ स्किल के पढ़ाने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो टीचर्स मैनुअल है, फिर ऑफ क्लास 6 and 7। नेक्स्ट स्लाइड सिंपल मैम प्लीज। उसके बाद क्लास 8 का टीचर्स मैनुअल है, क्लास 9 and 10 का टीचर्स मैनुअल है। तो आप इन सारे को देखिए। नहीं मैम, एक स्लाइड और ऊपर, इसके पहले वाला। तो ये सारे लाइफ स्किल्स के मैनुअल्स हैं। आप इन लाइफ स्किल मैनुअल को देखिए और अगर आपकी इच्छा हो तो आप पढ़िए इन मैनुअल्स को और पढ़कर अपने लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करिए। सिर्फ इतना मैं ये कहना चाहूंगी बिफोर आई कंप्लीट द डिस्कशन। मैम कैन वी प्लीज मूव टू स्लाइड नंबर 37। स्लाइड नंबर 37। मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइफ स्किल्स को इंटरैक्ट करने का, लाइफ स्किल्स को क्लास में ले जाने के कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं। आप चॉक एंड टॉक मेथड से लाइफ स्किल नहीं पढ़ा सकते। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। लाइफ स्किल्स को आप कैसे पढ़ा सकते हैं? स्लाइड नंबर 37। लाइफ स्किल्स को पढ़ाने के कुछ तरीके हैं। वो तरीका है पहला, डिस्कशन मेथड। और मैम आगे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। Is it okay, ma'am? नहीं, नेक्स्ट स्लाइड मैम। दिस इज इट, थैंक यू। नाउ लाइफ स्किल्स को पढ़ाने के क्या तरीके हैं? लाइफ स्किल को पढ़ाने का तरीका है डिस्कशन मेथड, डिबेट्स, रोल प्ले, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा। नेक्स्ट स्लाइड, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? केस स्टडीज, माइमिंग, acting, theater, poetry and recital, and question answers. Next slide. Games, working in small groups, simulation. I hope you know the meaning of simulation. सिमुलेशन का मतलब मैम स्लाइड नंबर 39। सिमुलेशन का मतलब ये है कि हम छोटा सा एक मॉडल बनाए। जैसे मान लीजिए ताजमहल है, अब ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल अगर हम बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिमुलेशंस। ठीक है। सॉन्ग एंड डांसिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने क्लास में लाइफ स्किल्स बच्चों को बेहतरीन ढंग से सिखा सकते हैं। नाउ कैन वी गो टू द सेकंड लास्ट स्लाइड मैम, स्लाइड नंबर 48। बहुत सुंदर एक कोटेशन लिखा हुआ है जिसको मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। एंड दिस कोटेशन सेज, बी ब्रेव, टेक रिस्क्स, नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंस। तो अब हम अपने बच्चों को एक्सपीरियंस के लिए तो बाजार में छोड़ नहीं सकते कि आप खुद अपना एक्सपीरियंस गेन करो और लाइफ स्किल सीखो। इसलिए टीचर्स का क्या काम है, जो मेथड्स मैंने आपको बताए उन मेथड्स को यूज करिए और आप डमी एक्सपीरियंशियल सीन्स क्रिएट करिए अपने क्लास में, जिसके एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। आप बच्चों को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दीजिए जहां उसको डिसीजन लेना पड़े,
जहाँ उसको इमोशंस को कंट्रोल करना पड़े, जहाँ उसको इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना हो। बच्चे को कहीं हम ले जाते हैं घूमने, बच्चे को कहते हैं लोगों से बात करो, इंटरव्यू लो, सर्वे करो, तो इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा। हम ऐसी सिचुएशन में बच्चे को डाल दें जहां उसे क्या तुमको भाई डिसीजन लेना है, तो ये आप करें ताकि जब बच्चा मेरा मार्केट में जाए, दुनिया में निकले 15 साल स्कूलिंग करने के बाद, तो उसके साथ जो भी लाइफ में हो, उसका जाना पहचाना सिचुएशन होना चाहिए। वो उसको लगना चाहिए अरे ऐसा तो मेरे साथ स्कूल में भी हुआ था, मैं ये कर सकता हूँ। Then the child can take right decisions for himself or herself. That's all from my side. Over to you if you have any questions. Next slide, please. If you have any questions, please ask me. If you have any questions, kindly ask. If you have any questions, kindly ask. Candidates may ask question if they have. If you have any questions, please go ahead. Just remember one thing, every teacher in the school is a life skill teacher. That's very important that you call yourself a life skill teacher or a life skill coach. Don't just call yourself a physics, English, chemistry, biology teacher. That's very important. Any questions from your side? Thank you, Kajal ji, Anjali ji. Thank you, ma'am. Very nice session. Simple, ma'am, please conclude. Now there is no question, I think. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mitali ma'am. Thank you all the participants. Though we have faced little bit technical issues, but I am confident that you have enjoyed and you have learned a lot with this session. So thank you so much. Thank you, Himanshu sir. Thank you, President and Founder sir. And most welcome to our resource person, one of the favorite our resource person, Mitali ma'am. Thank you. Ma'am, thank you for helping No, me no. out so much today. मैम Thank you. द थिंग इज दैट कि आप लाइफ स्किल सिखा रहे हैं और लाइफ स्किल के एग्जांपल्स हम लोगों ने शेयर किया यहाँ पे Right. हमें भगवान ने एकदम तुरंत एग्जाम्पल दे Yeah. दिया। so so thank you so much ma'am and we will wait for next Thursday for your session. Thank you. Thank you. Thank you. Dear participants, already attendance link has been shared, so please fill it by 6:15. Yes. Thank you, Mitali, ma'am. Thank you Himanshu sir. Thank The you best. sir. We can now leave. Simple, ma'am. All done, I think. Yes, sir. Okay, thank you, Thank you. everyone. Goodbye, sir. Goodbye, sir.